ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران نے لگاتار دوسری رات یعنی 15 جون کی رات بھی اسرائیل پر اپنا حملہ جاری رکھا، 50 سے زیادہ بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا اور ایران کے اس تازہ حملے میں اسرائیل کے 5 شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ 5 شہروں کی جو تصویریں ہیں بالکل غزہ پٹی جیسی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے 5 سے زیادہ شہروں کو غزہ پٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسرائیل کے کئی اہم ٹھکانوں کو بھی ایران نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حیفا میں اسرائیل کا جو آئل ریفائنری سسٹم ہے وہ پورا کا پورا ختم اور تباہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا جو ریسرچ سینٹر ہے جہاں میزائل بنانے کی، ہتھیار بنانے کی یا اسرائیل کی پوری پلاننگ جہاں طے کی جاتی ہے، اس ادارے کو بھی، اس انسٹیٹیوٹ کو بھی ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تباہی ہے، جو بربادی ہے اسرائیل میں، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے بھی ایران پر کئی خطرناک حملہ کیا ہے اور اسرائیل کا ایران پر جو سب سے خطرناک حملہ کل کی رات میں تھا وہ تہران میں ایک آئل ریفائنری سسٹم پر تھا، لیکن ایران نے اس حملہ کو روکنے کی کوشش کی۔ پوری طرح ایران اس حملے کو نہیں روک سکا، ضرور نقصان ہوا، لیکن اب پوری دنیا میں ایران کے حملے میں جو اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اس پر چرچا ہو رہی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور اسرائیل کے 5 بڑے شہر جن کو ایران نے حملہ کر کے غزہ پٹی میں تبدیل کر دیا ہے، غزہ پٹی جیسا منظرنامہ وہاں کا ہے، اس میں پہلا نام تل ابیب کا ہے، دوسرا نام ریشون لیزون کا ہے، تیسرا نام حیفا کا ہے، چوتھا نام ریٹن ٹیکیو کا ہے اور 5واں نام نتیانا کا ہے۔ تو اسرائیل کے یہ 5 بڑے بڑے شہر ہیں جہاں کی کئی کالونی، پورا محلہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ غزہ پٹی جیسی تصویریں وہاں کی سامنے آ رہی ہے اور حیفا میں ایران کے میزائل نے سب سے زیادہ قیامت برسانے کا کام کیا۔ حیفا میں اسرائیل کا سب سے بڑا آئل ریفائنری سسٹم ہے۔ پورے اسرائیل میں آئل کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے، دنیا کے باہر کے دیشوں میں بھی یہاں سے تیل کی سپلائی کی جاتی ہے اور اتنے بڑے آئل ریفائنری سسٹم کو جو حیفا کی بندرگاہ پر پورٹ کے پاس ہی واقع ہے، ایران کے میزائل نے اس کو ٹارگٹ کیا۔ ایران سے جب میزائل کو لانچ کیا جاتا ہے تو راستے میں کئی جگہ ایران سے لانچ ہونے والے میزائل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئرن جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم خود اپنے آپ میں بہت بڑا اور مضبوط ہے، اس کے باوجود ایران کے اس میزائل کو اسرائیل کا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم یا اردن کا ڈیفنس سسٹم یا دنیا کے دوسرے دیشوں کا، امریکہ کا ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکا۔ وہ سیدھے آ کر گرتا ہے حیفا کی بندرگاہ میں بنے آئل ریفائنری سسٹم اور وہ پورا کا پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے کل ایک اور حملہ کیا وائز مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس پر۔ اسرائیل کا وائز مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں ریسرچ کیا جاتا ہے، جہاں پورا سسٹم موجود ہے، جہاں اسکول کا سلیبس کیا ہوگا، ڈھانچہ کیا ہوگا، اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے اسرائیل کے تعلقات کیسے ہوں گے اس کی پلاننگ یہاں بنائی جاتی ہے۔ اسرائیل کو کیسے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، یہ ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندی اسی وائز مین انسٹیٹیوٹ آف اسرائیل میں کی جاتی ہے اور اس کو کل ایران نے میزائل سے نشانہ بنایا۔ اس کی فوٹیج اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ خبروں کے مطابق ایران کے حملے میں اب تک اسرائیل میں 30 سے زیادہ کی ہلاکت ہو چکی ہے، 200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اب اسرائیل میں افراتفری ہے، ملبوں کے نیچے سے لاشوں کو نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی عوام لگاتار بنکروں میں چھپ کر رہ رہی ہے، اپنی سرکار پر وہ غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی تصویریں اور فوٹو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے سے بچنے کے لیے رات میں لوگ جس حالت میں ہیں اسی میں بھاگ رہے ہیں، کپڑا پہننے کا بھی ان کو موقع نہیں مل سکا ہے۔ ایک شخص کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جو چڈی میں ہی بھاگ رہا ہے، اس کو کپڑا پہننے کا بھی، پینٹ پہننے کا بھی موقع نہیں مل سکا کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک شہر ریشون لیزون، یہاں جو تباہی ہوئی ہے، یہاں جو پوری بربادی ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں حیرت ناک ہے اور اب تمام جگہ سے تصویریں سامنے آنے لگی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے لگاتار ان سب جگہوں کو بچانے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی، دوسروں کو نقصانات کا پتہ نہ ہو سکے،
इन सब पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई सामने आ गई है। टीआरटी का एक रिपोर्टर इजराइल में मौजूद है, उसने कल एक पोस्ट में लिख करके बताया कि सिर्फ एक जगह पर इंटरनेशनल सहाफ़ियों को ले जाया गया इजराइल में, और जब तिल अबीब में उस जगह पर हम लोगों ने देखा तो जो तबाही थी, जो बर्बादी थी, वो नाकाबिल बयान है। और गज़ा की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, गज़ा में जिस तरह की बर्बादी हुई है, उससे ज़्यादा यहाँ की बुरी सिचुएशन बनी हुई थी। टीआरटी के उस सहाफ़ी ने यह भी बताया कि मज़ीद 2 जगह के बारे में ऐसी खबरें थी जहां बहुत बड़ी तबाही हुई है, जहां की जो पूरी बिल्डिंग है वो ज़मीन दोज़ हो गई है, लेकिन हम लोगों को वहां जाने से रोका गया। इजराइल की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। आप एक तरफ पूरी मुकम्मल इमारत को देख सकते हैं जो सही साली में महफूज है, ईरान से हमले की पहले की तस्वीर है, और दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग की तस्वीर है जो ईरान के हमले की बाद की है। तो ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल को गहरा जख्म दिया है, और इजराइल सोच नहीं सकता था कि ईरान का जो पलटवार और ईरान का जो जवाबी हमला होगा इतना ताकतवर होगा। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, और कल मैंने तफसील से बताया था कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू किया और इजराइल के इस हमले में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो पहले ट्रंप का बयान यह सामने आता है कि इजराइल ने अपने दम पर हमला किया है, अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर हमला किया है। उसके बाद जब ट्रंप को यह लगता है कि ईरान ने फौरी तौर पर इजराइल को जवाब नहीं दिया, ईरान का डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, ईरान इजराइल के फ़िज़ाई हमलों को, उसके फाइटर प्लेनों को मार गिराने में कामयाब नहीं हो सका, और एक तरफा तौर पर 13 जून के हमले में सिर्फ ईरान का नुकसान हुआ है, इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 70 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो जाती है, 20 से ज़्यादा आर्मी के सीनियर अहलकार और साइंटिस्ट की शहादत हो जाती है। तो ट्रंप ने फिर अपना सीना चौड़ा करके कहा कि इजराइल के इस हमले में अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका ने ही इजराइल को अपना हथियार दिया है, अपनी टेक्नोलॉजी दी है, पूरी तरह सपोर्ट किया है, तभी इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने पूरा हमला अमेरिका को बता करके किया था, और ट्रंप ने बड़े फखरिया अंदाज में यह भी कहा कि मैं पहला ऐसा शख्स हूँ, मैं पहला ऐसा अमेरिका का सदर हूँ जिसने सबसे ज़्यादा खुलकर इजराइल की मदद की है, और उसकी मदद से इजराइल ने ईरान की धज्जियाँ उड़ा दी है, ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये ट्रंप का फखरिया बयान था। और जब 14 जून की रात में ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया, ईरान ने 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, ड्रोन से हमला किया, रॉकेट लॉन्च किया, और इजराइल के शुरू के दिन में जब 5 शहर खंडर में तब्दील हो गए, जिसमें तिल अबीब, हैफा, यरूशलेम, बेरशेवा और अश्कलोन का नाम शामिल है, तो ट्रंप की नींद उड़ जाती है। ट्रंप को यकीन नहीं होता कि ईरान का जवाब भी इतना खतरनाक होगा, ईरान का पलटवार इतना खतरनाक होगा। और उसके बाद ट्रंप मजीद धमकी देने की कोशिश करते हैं कि अगर अब भी ईरान बाज नहीं आता है, ईरान अपने हमले को नहीं रोक देता है, ईरान न्यूक्लियर डील पर हमारी बात नहीं मानता है, तो इजराइल के पास हमारा और ज़्यादा ख़तरनाक हमला है, इजराइल उससे हमला करेगा और ईरान को मिटा देगा। लेकिन ट्रंप ने जब 14 जून के हमले को देख लिया, तब ट्रंप ने सऊदी अरब के प्रिंस और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की, कतर के ज़िम्मेदारों से बातचीत की, और इन लोगों ने सीज़ फायर पर बातचीत करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने इन सब से कहा कि हम मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में तनाज़ो नहीं चाहते, कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, कशीदगी नहीं चाहते, मामला हल होना चाहिए, जंग रुक जानी चाहिए। और अब ट्रंप का एक और ताज़ा बयान सामने है। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, और बातचीत तकरीबन 1 घंटे तक होती रही, और 1 घंटे की बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, ये सिलसिला रुक जानी चाहिए। ईरान का जिस तरह का पलटवार है, जवाबी हमला है, उससे यकीनी तौर पर इजराइल का ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इजराइल का नुकसान होने का मतलब है अमेरिका का नुकसान होना, इजराइल की हार का मतलब है अमेरिका की हार होना। ईरान ने अमेरिका के 3 F-35 फाइटर प्लेन को मार गिराया है जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अमेरिका का इस्तेमाल है। दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन F-35 को माना जाता है, और अमेरिका दुनिया के सारे देशों को देता भी नहीं है। सऊदी अरब से अरबों
बिलियन डॉलर अमेरिका लेता है, उसको भी अमेरिका ने ये अपना F-35 नहीं दे रखा है। सिर्फ इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल के पास, और अमेरिका तो ये बनाता ही है। उस F-35 में से 3 को मार गिराया है ईरान ने अब तक। एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुछ खबर यह भी है कि 10 से ज़्यादा F-35 फाइटर प्लेन को ईरान ने मार गिराया है और इजराइल की अब नींद हराम हो चुकी है। इजराइल लगातार रिजेक्ट कर रहा है, तरदीद कर रहा है कि ईरान का दावा गलत है, लेकिन ईरान ने सबूत दिखा दिया है। मीडिया में खबरें आ चुकी है कि सच में ईरान ने F-35 को मार गिराया है और ये इजराइल की बुरी हार है, ईरान की ज़बरदस्त जीत है और ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि चीन ने अपना एक कार्गो प्लेन ईरान को भेजा है और ईरान में ये कार्गो प्लेन पूरी कामयाबी के साथ लैंड कर चुका है। और इस कार्गो प्लेन में चीन ने ईरान को क्या भेजा है उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आई है, बल्कि इस कार्गो प्लेन के आने की पूरी खबर को भी सीक्रेट रखा गया था। लेकिन तुर्की के मीडिया हाउसेस ने इस खबर को रिवील किया है, जारी किया और बताया गया कि चीन से एक कार्गो जहाज़ ईरान पहुंचा है। जो रडार है वहां भी ये जहाज़ नज़र आ गया था और तभी से ये खबर सामने आ गई थी। अब कहा यह जा रहा है, अंदाज़ा ये लोगों का कि उस जहाज़ में कुछ हथियार हो सकते हैं, कुछ फाइटर प्लेन टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें हो सकती है जिसको चीन ने ईरान को भेजा है। और पहले से भी चीन का ईरान को हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है। एक और ख़बर इजराइल से ताज़ा तरीन यह रही है कि क्रोएशिया के एम्बेसडर की हालत ख़राब हो गई है ईरान के हमले में। ईरान ने जब हमला किया तो क्रोएशिया के एम्बेसडर का जो घर है उस पर भी मिसाइल का टुकड़ा आकर के गिरा और उस मिसाइल के टुकड़े के गिरने की वजह से क्रोएशिया के एम्बेसडर की और उसकी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये ज़ख्मी है, इनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और बाहर के मेहमानों पर वहाँ हमले होने का मतलब यह है कि इजराइल की जो मुश्किलें हैं और बढ़ जाएगी और दुनिया के जो लोग हैं वो इजराइल जाना बंद कर देंगे। अपनी एम्बेसीज़ को, सिफारतखाना को भी बंद कर दिया जाएगा इजराइल में। और अब इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए। कल ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तीसरे मुल्कों के ज़रिए इजराइल ने ईरान को मैसेज भेजा है कि जंगबंदी की तरफ तवज्जो की जाए और हमले को रोक दिया जाए। खुद कल इजराइल ने बहुत ज़्यादा धमकी दी थी ईरान को, और ईरान को धमकी देते हुए इजराइल ने कहा था कि अगर मज़ीद मिसाइल से हमला किया ईरान ने इजराइल पर तो इजराइल ईरान को ख़तरनाक और भयानक जवाब देगा, ईरान के वजूद को मिटा दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने ज़र्रा बराबर भी इजराइल के हमलों की धमकियों की परवाह नहीं की और 50 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ख़ुद ईरान ने कहा था कि हमारा जो अगला मिसाइल हमला होगा वो पहले से 20 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा तबाहकुन होगा, और वही हुआ। ईरान ने जब 15 जून की रात में 50 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, अल-फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया, इसी तरह हज़रत अली बिन अबी तालिब मिसाइल का इस्तेमाल किया, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, तो इन हथियारों ने इजराइल में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। क़यामत जैसे हालात बने हुए हैं। तिल अबीब, हैफ़ा और कई ऐसे शहर हैं इजराइल के जो तबाह हो चुके हैं। हैफ़ा में ऑयल रिफाइनरी सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। उसके अलावा इजराइल की मिसाइल की जो फैक्ट्री है वो पूरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई है। उस फैक्ट्री को ईरान ने निशाना बनाया और वाइज़मैन इंस्टीट्यूट तबाह हो गया है, दूसरे इलाके तबाह हो गए हैं। तो इजराइल में तबाही की जो तस्वीरें हैं वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह 13 जून की रात में हर तरफ ईरान में तबाही थी, बर्बादी थी, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई थी। उसके बाद 14 जून की रात में ईरान ने बदला लिया और 15 जून की रात में ईरान ने उससे ज़्यादा खतरनाक हमला किया। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खामनेई का सीधा बयान अल जज़ीरा पर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस जंग का आगाज़ इजराइल ने किया, इजराइल ने हम पर हमला किया, लेकिन इस जंग का इख्तिताम अब ईरान करेगा। और ईरान जब तक इजराइल के तमाम ख़तरे को ख़त्म नहीं कर देता है, इजराइल के जो गुरूर था, इजराइल का जो तकब्बुर था, उसको ईरान ख़त्म नहीं करता, उस वक्त तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। और ईरान ने सच में इजराइल को जवाब दे दिया है। इजराइल में अब तक जो हमले होते थे तो इजराइल का कितना नुकसान हुआ, किस तरह की तबाही हुई, उसकी तस्वीरें सामने नहीं आ पाती थी, दुनिया को पता नहीं चल पाता था। और लगता यही था कि इजराइल पर जितना भी हमला किया जाए उसका डिफेंस सिस्टम, उसका आयरन डोम इतना मजबूत और ताकतवर है कि उसका बाल बेका नहीं होगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन ईरान ने इस बार अपने मिसाइल हमले से इजराइल को उसकी औकात बता दी है, तबाही मचाई है और तस्वीरें बोल रही है। ईरान को किसी भी तरह की वीडियो जारी करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आ रही है। IDF की तरफ से, इजरायली आर्मी की तरफ से लगातार
ویڈیوز پیش کی جا رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس نے ایران پر حملہ کیا، ایران کو نقصان پہنچایا، لیکن ایران نے جو تباہی اسرائیل میں مچائی ہے پوری دنیا اور خود اسرائیل کی میڈیا اس کی گواہی پیش کر رہا ہے، اور ایران کو ذرا برابر کوئی ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ اور اگر اسرائیل کے آس پاس کے جو مسلم ممالک ہے، شام ہو یا اردن ہو یا لیبیا ہو یا عراق ہو، ان کو اگر ذرا برابر ایمانی غیرت آ جائے، یہ تھوڑا سا ایران کو سپورٹ کر دے، صرف اپنا ایئر اسپیس ایران کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیں، تو پھر ایران اپنے فائٹر پلین کا اگر استعمال کر کے حملہ کرے گا اسرائیل پر، تب تو اسرائیل کا وجود ہی دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے امریکہ کے ہتھیاروں کی بدولت کر رہا ہے، امریکہ جنگ لڑ رہا ہے ایک طرح سے، اور ادھر اسرائیل اکیلا ہے، ادھر پوری دنیا ہے۔ انگلینڈ نے بھی اپنا جہاز جورڈن کی طرف بھیج دیا ہے، اور اس کے اپنے جہازوں کو جورڈن کی طرف یا کہہ لیجئے اسرائیل کی طرف بھیجنے کا مقصد یہ ہے اسرائیل کا دفاع کرنا، اسرائیل کا ساتھ دینا، ایران سے آنے والے میزائل کو روکنا، اور یہ جورڈن پہنچ کر انگلینڈ کی آرمی کرے گی۔ تو پوری دنیا اسرائیل کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، ایران تنہا ہے، اپنے دم پر اسرائیل کو دندان شکن جواب دے رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔